Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed Lagrange's mean value theorem and its proof and some results from Lagrange's mean value theorem. Today we are going to do examples related to Lagrange's mean value theorem. So before doing the examples आपको statement पता होनी चाहिए Lagrange's mean value theorem की और उससे हमारे पास क्या result आया था वो पता होना चाहिए. So Lagrange's mean value theorem की statement क्या थी? अगर कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल a to b में and the function is also derivable in open interval a to b, then we will find a f dash c such that it is equal to fb minus fa divided by b minus a. So ये statement थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्रूफ करवाएंगे. देखिए कैसे. So we have to verify Lagrange's mean value theorem for the given function 2x minus x square in the interval 0 to 1. So the function which is fx is a polynomial. जो function आपको given है वो एक polynomial function है. And polynomial function is always continuous and derivable. So we will write here f of x is continuous in the interval 0 to 1. क्योंकि polynomial function is always continuous. f of x is derivable in interval open interval 0 to 1. So derivability हम check करते हैं open interval में. So you write here, thus both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Thus there exists at least one c which belongs to interval a to b. यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 to 1 such that f dash c is equal to fb. यहाँ पे b क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 0, b है मेरे पास 1, a 0 and b is 1. So f of 1 minus f of 0 divided by 1 minus 0. So एक c ऐसा लाई करेगा such that ये हमारे पास इसके इक्वल होगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको पेपर में लिख के आना है. तो यही आपको ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखनी है. तो देखिए f dash c फाइंड आउट करते हैं. उससे पहले f dash x फाइंड आउट करो. दैट इज 2 minus 2x. So f dash c is equal to 2 minus 2c. Now we will find out f of 1. f of 1 is 2 minus 1, that is 1. f of 0 is 0. So हमारे पास आ जाएगा 2 minus 2c is equal to f of 1 which is 1 minus 0 divided by 1 minus 0. So 2 minus 2c is equal to 1. So c is equal to 1 by 2 and which belongs to open interval 0 to 1. So हमें क्या c मिल गया जो 0 से 1 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है. Then you will write hence Lagrange mean value theorem is verified. यहाँ से मेरे पास क्या हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है Lagrange's mean value theorem का. So इसी टाइप से इसको आपको इसका सेकंड पार्ट करना. So next we have example number 2. Find c of Lagrange's mean value theorem. Fx is given to you x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 in the interval 0 to 4. So fx is a polynomial function. यहाँ पे भी polynomial function है. So it is continuous in the interval. यहाँ पे interval change हो जाएगा 0 to 4. fx is also derivable in the open interval 0 to 4. Thus both the conditions of L and Vt are satisfied. You will again write this line. Thus there exists at least one c which lies from the interval 0 to 4 such that f dash c is equal to, देखिए यहाँ पे a है मेरे पास 0 और b है 4. So f of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0. So f dash x फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे f dash c. So f dash x के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिएगा. देखिए फर्स्ट 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट है. सो फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 1. सिमिलरली अब नेक्स्ट 2 ले लेते हैं, दोनों साथ में ले लेते हैं और x minus 1 का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस x minus 1 एंड x minus 3 ले लेते हैं साथ में. सो ये हमारे पास है f dash x. सो अब हम फाइंड आउट करते हैं f of 4. f of 4 क्या आएगा, 3 into 2 into 1 that is 6. f of 0 is minus 1 into minus 2 into minus 3 that is minus 6. अब
यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू थोड़ी सी सॉल्व करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 से आ जाएगा 3x स्क्वायर 3 5 8 प्लस 4 दैट इज 12x 2 6 3 so this is 11. So from here you can find out f dash c, that is 3c square minus 12c plus 11. So यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, दिस इज f dash c, so 3c square minus 12c plus 11 is equal to f of 4 की वैल्यू हमारे पास 6 minus of -6 divided by 4 which is 3c square minus 12c plus 11 is equal to 12 divided by 4 that is 3. 3c square minus 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन बन चुकी है और हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला. सो माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a. सो ये बेसिकली a होता है, ये b होता है, दिस इज c. सो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -12 दैट इज +12 प्लस -12 होल स्क्वायर -4 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6. तो हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों टर्म्स में से मैं 4 और 4 कॉमन निकाल लेती हूँ. निकालने के बाद मेरे पास क्या बचाएगा, प्लस माइनस 4 और 4 कॉमन निकाल तो बाहर एक 4 आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास 9 का 9 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6. सो कैंसिल 2 से 2 6 2 3 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3. तो हम चेक करते हैं कि प्लस माइनस वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज के अंदर लाई कर रही है. तो आपको चेक कैसे करना पड़ेगा, देखिए अंडर रूट 3 अप्रॉक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग होता है. तो 6 प्लस 2 हम मान लेते हैं 1. तो 6 प्लस 2 इज 8 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग जो इस इंटरवल में के बीच में लाई कर रहा है. अब सपोज मैं लेती हूँ नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट 3 इज अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं -1. सो 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, अगेन इट लाइज इन दिस इंटरवल. मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं इन दिस इंटरवल, means these belongs to 0 to 4. ये इंटरवल में बिलोंग करेंगे. So last time you will write hence Lagrange mean value theorem is verified. So now let us discuss example number 3rd. So before discussing example number 3rd, let us discuss example number 4 क्योंकि ये भी similar है, वो थोड़ा सा different है. So I will do it later on. So verify Lagrange's mean value theorem for function at a sin x in the interval pi by 2 to -5 pi by 2. So यहाँ पे जो फंक्शन है, जो sin x है, वो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. So fx is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है. अब जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस और जो इंटरवल दे रखा है आपको pi by 2 to 5 pi by 2. Similarly, trigonometric function is also derivable function in the interval pi by 2 to 5 pi by 2. Thus, both the condition of LMDT are satisfied. Thus, there exists at least one C which belong to open interval pi by 2 to 5 pi by 2 such that f dash C की वैल्यू क्या होगी. देखिए यहाँ पे मेरे पास A है pi by 2 and B is 5 pi by 2 which is equal to f of B. मतलब f of 5 pi by 2 minus f of pi by 2 divided by 5 pi by 2 minus pi by 2. डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा 4 pi by 2 by 2 दैट इज 2 pi. सो डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 pi. नाउ देखिए f dash x, so sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास cos x and f dash c is equal to cos c. Now first we will find out f of pi by 2 means sin of pi by 2 which is your 1. Next we will find out sin of 5 pi by 2, sin of 5 pi by 2 which can be written as sin of 2 pi plus pi by 2 and 2 pi का मतलब क्या होता है 0. So from here we can write this is sin pi by 2 in the first quadrant which is equal to 1. So putting the values in this equation we will get cos c is equal to 5 pi by 2 is 1 minus 1 divided by 2 pi. So cos c is equal to 0. अब cos c किन किन पे 0 होता है, देखिए cos c होता है हमारे पास 0 when c is pi by 2, when c is 3 pi by 2, when c is 5 pi by 2 up to so on.
अब वो वैल्यू उठानी है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करिए। देखिए आउटर वैल्यूज तो हम उठाते नहीं हैं क्योंकि हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। सो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है 3π/2, तो c इज इक्वल टू 3π/2 बिलोंग्स टू योर ओपन इंटरवल π/2 to 5π/2. Last line you will write, hence Lagrange's mean value theorem is verified. So एक हमने क्वेश्चन कर लिया ट्रिग्नोमेट्री पे, एक हमने किया था पॉलिनोमियल पे. Now we have example number 5. It says that verify Lagrange's mean value theorem for logarithm function. So हमने दो टाइप्स के ऑलरेडी फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड टाइप है logarithm function. So you write here fx is a logarithm function, and every logarithm function it is a continuous function in the interval 1 to 2. Also इस function का derivative find out करें, so 1 by x, and at x is equal to 0 it is not derivable, possible नहीं इसका derivative, और 0 इस इंटरवल में हम आपको दे ही नहीं रखा. So fx is derivable in the interval 1 to 2. So 1 to 2 में तो derivable है ही, 0 पे अगर बात होती तो हम लिखते कि not derivable. Now you will write thus both the condition of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Thus there exists at least one c which lies in the open interval 1 to 2 such that f dash c is equal to, देखिए यहाँ पे a है मेरे पास 1 और b है 2, such that f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1. So first we will find out f dash x, that is 1 by x. f dash c क्या हो जाएगा 1 by c. Now f of 1 find out करेंगे and f of 2. So f of 1 is log of 1. Log 1 is 0. F of 2 is log 2. Now we put the value in the given equation. So f dash c, that is 1 by c is equal to log 2 minus 0 divided by 2 minus 1 is 1. So from here we will get c is equal to 1 by log 2 जो मेरे पास इस इंटरवल में बिलोंग करे, क्योंकि log 2 की जो वैल्यू होती है टेबल में अगर हम चेक करें डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय दिस, सो एक छोटी वैल्यू बन जाती है, एंड इट लाइज इन द इंटरवल दिस टू दिस. सो हेंस Lagrange's mean value theorem is verified. फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं log e और इसको लिख सकते हैं हम log 2. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं log 2e. मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसको यहाँ पे बेस में लिख देते हैं. जब इसको ओपन अप करोगे तो आपको यही मिलेगा. तो आपको इस टाइप से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 1 by log 2 तक भी छोड़ सकते हो. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जामिन Lagrange's mean value theorem. तो आपको यहाँ पे पता लगाना है कि Lagrange's mean value theorem एप्लीकेबल है भी या नहीं फॉर द फंक्शन x की पावर 1 by 3. सो इस टाइप से अगर आपको फ्रैक्शनल पावर दिख जाए, सो ये मेरे पास होता है एल्जेब्रिक फंक्शन. और एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअस तो मिलेगा ही मिलेगा, डेरिवेटिव मे बी पॉसिबल और मे बी नॉट पॉसिबल. सो fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1 to 1. ये बात तो हमें पता है. अब इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं पॉसिबल है नहीं. सो f dash x इज इक्वल टू 1 by 3 x raised to power -2 by 3, which is further written as 1 by 3 x raised to power 2 by 3. Now f dash x is not defined at x is equal to 0. x is equal to 0 पे डिफाइन नहीं है और 0 इस इंटरवल में आ रहा है, लाई कर रहा है. सो इसका मतलब f dash x you can write here f dash x is not derivable, क्योंकि डेरिवेबल हर पॉइंट पे होना चाहिए इस इंटरवल में. एक पॉइंट पे भी नहीं है, इसका मतलब डेरिवेबल है ही नहीं. नॉट डेरिवेबल इन द इंटरवल -1 to 1. सो एक कंडीशन सेटिस्फाई और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. thus you can write Lagrange's mean value theorem is not applicable. एप्लीकेबल होने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है. नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6. Using Lagrange's mean value theorem, you have to prove that modulo of sin m minus sin n less than equal to m minus n for all m and n. तो इसके साथ में मेरे पास हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं. तो फंक्शन मुझे दिख रहा है sin x दिख रहा है फंक्शन, और इंटरवल आइडेंटिफाई करें तो नीचे a माइनस b. देखिए f dash c किसके इक्वल होता है fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a. मतलब b मुझे दिख रहा है m और a मुझे लग रहा है m. सो इंटरवल बन जाएगा mn. ठीक है. उसके बाद देखिए फंक्शन ये है. सो यहाँ से f dash x फाइंड आउट करते हैं. उससे पहले चेक करते हैं कि इस पे Lagrange's mean value theorem एप्लीकेबल है या नहीं. सो वी नो दैट fx इज कंटिन्यूअस क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल mn. Similarly you will write that fx is derivable
डेरिवेबल भी है इन अपर इंटरवल एम एन, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है। दस हमें मिल जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। उसके बाद आप एक लाइन लिखोगे, दस ऑल द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड and we will get at least one C lying between M and N such that f dash C is equal to this formula. So देखिए f dash C मतलब f dash x, मतलब डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, so f dash C आ जाएगा मेरे पास cos C। अब देखिए f of b मतलब f of m माइनस f of n डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे इंटरवल a भी होता है ना, तो यहाँ पे nm लिख दीजिए इंटरवल को, से आ जाएगा m माइनस n। सो f of m क्या होगा मेरे पास sin m, और f of n इज sin n डिवाइडेड बाय m माइनस n इज इक्वल टू cos c। दोनों तरफ मोड दे सकते हैं क्योंकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रूव करना है, उसके अलावा कोई और वो नहीं है इसका रीजन। सो वी नो दैट मोड ऑफ cos c इज लेस देन इक्वल टू 1, हमेशा मोड ऑफ cos c लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट sin of m minus sin of n divided by m minus n is less than equal to 1. From here we can write mod of sin m minus sin n is less than equal to mod of m minus n. And this only we have to prove. So next we have example number 7. Show that ये वाली चीज इससे कम है and this is further less than this. So इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक समझिए आप। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे a, इसको लेट कर लेते हैं b, इसको लेट कर लेते हैं c। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करना है b माइनस c, मतलब राइट हैंड साइड जो चीज बड़ी है उससे माइनस दिस टर्म। उसके बाद आप क्या करोगे, f डैश x को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करोगे। प्रूफ करने के बाद ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, फ्रॉम हियर वी कैन राइट fx इज ग्रेटर देन f0। बड़ा हो गया fx मेरे पास क्या है, b माइनस ए, f0 क्या है 0, तो यहाँ से आ जाएगा b इज ग्रेटर देन a, और हमें यही क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो देखिए सपोज मैंने मान लिया इसको b, इसको दिस a एंड दिस b, पहले मैं इसको प्रूफ करती हूँ, देन आई विल गो टू दैट। सो यहाँ पर फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, b माइनस a मीन्स log ऑफ 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर बाय 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। So f dash x is equal to 1 by 1 plus x minus 1 plus 2x by 2। फर्दर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 plus x से आ जाएगा 1 minus 1 plus x into 1 plus x, ये आ जाएगा 1 minus x plus x square divided by 1 plus x, ये कैंसिल एंड दिस आल्सो कैंसिल, से आ जाएगा x square by 1 plus x। अब आपको दे रखा है x ग्रेटर देन 0 थर्ड पॉइंट में, सो फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फॉर x स्क्वायर बाय 1 प्लस x is greater than 0 for all value of x greater than 0. So this is greater than 0, from here we can write f dash x is greater than 0. f dash x 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब function is monotonically increasing thus we can write fx is greater than f0। देखिए f of x मेरे पास क्या है, log of 1 plus x minus of x minus x square by 2 greater than f of 0, x की जगह 0 पुट करें तो हमें मिलेगा 0। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाएगा log of 1 plus x greater than x minus x square by 2। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x minus x square by 2 is less than log of 1 plus x, और हमें यही करना था प्रूफ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसको लेट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान रखना है कि हमने इसको क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट कि ये वाली चीज इससे बड़ी है। सो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, देखिए क्या रहेगा। यहाँ पे हम लेंगे बी सी, तो यहाँ पे हम फंक्शन कंसीडर करेंगे सी माइनस ए और सी माइनस बी, जो भी राइट हैंड साइड है दिस माइनस दिस, सी माइनस बी कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम ये चीज प्रूव करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी माइनस बी ग्रेटर देन 0 मीन सी इज ग्रेटर देन बी। फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ दो,
इसको मान लो b, और आप यही वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी इच्छा है कि आप इसको abc मान के करो या फिर इसको ab मानो, फिर नेक्स्ट सेट में आप इसको ab मानो। तो यहाँ पे fx क्या होगा मेरे पास, c माइनस b मीन्स x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स। सो एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 बाई 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 2x, यू बाई वी से फाइंड आउट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, से आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 into 1 plus x, which is further equal to 2 divided by 1 plus x का whole square, 2 into 1 plus x square plus 2x minus 2x minus x square, यहाँ पे आ जाएगा minus 2 minus 2x। फर्दर ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, 2 plus 2x square plus 4x minus 2x minus x square minus 2 minus 2x divided by 2 into 1 plus x का whole square, so minus 2 plus 4 और -2 से -2 से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, ये भी चीज बड़ी है 0 से, जब हमारे पास x की वैल्यूज क्या है बड़ी है 0 से। फ्रॉम हियर वी कैन राइट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 तो हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है देन वी विल हैव fx is greater than f0। so fx मेरे पास क्या है x minus x square by 2 into 1 plus x minus log of 1 plus x, और f of 0 यहाँ पे 0 पुट करते तो हमें मिलेगा 0। so from here we can write x minus x square by 2 divided by 1 plus x is greater than log of 1 प्लस एक्स। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स को इधर लिख लेते हैं और इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो आ जाएगा log ऑफ x इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस एक्स है यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी हमारी, उसको लेकर इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को कंबाइन करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एक्स। तो कंबाइनिंग दिस टू, देखिए log ऑफ x इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो यहाँ से हम कंबाइन कर देते हैं, सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास हमें यही प्रूव करना था। तो बस आपको इन टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको ये लेके चलना है, ये कंसीडर करना है, देन यू हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड देन यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। सो नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 8। यूजिंग Lagrange mean value theorem you have to prove that 1 plus x is less than e raised to power x less than 1 plus x e raised to power x for all value x greater than 0। तो यहाँ पे Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना, तो हमें यहाँ पे फंक्शन तो पता होना चाहिए तभी हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन कंसीडर करते हैं e raised to power x। तो आपको फंक्शन कैसे पता लगेगा कि हमें क्या कंसीडर करना है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, यहाँ पे e raised to power x दिख रहा है, तो यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो सेंटर में होगा वही फंक्शन होगा, वैल्यूज विल चेंज। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंसीडर करते हैं फंक्शन। सो वी विल फाइंड आउट f dash x which is e raised to power x, और यहाँ पे हम इंटरवल कंसीडर करते हैं। देखिए 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 तो होगा ही, लेस देन सम वैल्यू x ले लिया मैंने यहाँ पे। सो फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, सो इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल दिस एंड इट इज आल्सो डेरिवेबल। Derivable will be continuous with then we can apply Lagrange's mean value theorem, and from here we will get f dash x is equal to e raised to power x. So f dash c is equal to e raised to power c. So now f dash c is equal to f of x minus f of 0 divided by x.
वैल्यू थ्योरम की कंडीशन होती है कि हमें एक ऐसा c मिलेगा सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस. So f dash c, that is e raised to power c, f dash x means e raised to power x, e raised to power 0 is 1 divided by x. now देखिए हम कंसीडर करते हैं हमें c मिलेगा इसके बीच में. we will get c between 0 to x, so we will have 0 less than c less than x. ये कंडीशन मिलेगी क्योंकि c के बीच में लाई करेगा somewhere. so देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ e raised to power कर देते हैं. so e raised to power 0, e raised to power c, e raised to power x. so 1 e raised to power c, e raised to power x. e raised to power c को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं 1 by e raised to power x minus 1 by x e raised to power x. multiplying by x, both sides we will get x e raised to power x minus 1 less than x e raised to power x. adding 1 all sides we will get x plus 1 less than e raised to power x less than x e raised to power x plus 1. और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था. सो यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करना और फिर यहाँ पे c लेके चलना है इनके बीच में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एग्जांपल नंबर 9, दैट इज यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यू हैव टू प्रूव दैट 1 by v square is less than tangent inverse v minus tangent inverse u divided by v minus u. सो इसके अकॉर्डिंग आपको Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्टेटमेंट लगेगा कि फंक्शन जो है टेंजेंट इनवर्स x मिलेगा और लिमिट्स क्या मिलेंगी v एंड u. मतलब b मेरे पास होगा v और a मेरे पास होगा u लेस देन 1 by u स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन कंसीडर करते हैं f of x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x. ठीक है, फंक्शन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है. इंटरवल मैंने दे दिया u to v. दोनों कंडीशन मेरे पास Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाइड है. सो मिलेगा एक c सच दैट f dash c इज इक्वल टू f of v minus f of u divided by v minus u. So f dash c means tangent inverse x का derivative. So first let us find out f dash x, that is 1 by 1 plus x square, that is 1 by 1 plus c square. So आ जाएगा 1 by 1 plus c square. f of v means tangent inverse v minus tangent inverse u divided by v minus u. Now देखिए हमें क्या, हमें पता है कि एक c मिलेगा जो c लाई करता है, that always lie between u and v. So यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज होता है कि u less than c less than v. So यहाँ पे हम पिक करते हैं u and c first. So u is less than c and then we will pick v is greater than c. So u is less than c. So देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे u का स्क्वायर दिख रहा है, 1 अपॉन ये दिख रहा है. So मैं किसी टाइप से बोलेंगे की कोशिश करूंगी. So आ जाएगा u का स्क्वायर करते हैं, u स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर. So 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, लेस देन 1 प्लस c स्क्वायर. रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 by 1 plus u square is greater than 1 by 1 plus c square. और 1 by 1 plus c square की वैल्यू मेरे पास ये है. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by c square is less than 1 by 1 plus u square. From where we can write tangent inverse v minus tangent inverse u divided by v minus u is less than 1 divided by 1 plus u square. सिमिलरली हम ये प्रूफ करते हैं, ये पार्ट प्रूफ होगा ना. यहाँ से देखिए now we'll prove this. अब देखिए मुझे दिख रहा है 1 by 1 plus v square. So again squaring, so c square is less than v square. ऐड कर देते दोनों तरफ 1. After this reciprocal कर देते 1 by 1 plus c square is greater than 1 by 1 plus v square. Further इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus 1 by v square is less than 1 plus 1 by c square. So 1 by 1 plus c square की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं. से आ जाएगा 1 divided by 1 plus v square less than tangent inverse v minus tangent inverse u divided by 1 plus c square. Now from equation number 1 and from equation number 2 we can say that 1 divided by 1 plus v square is less than tangent inverse v minus tangent inverse u divided by 1 plus c square is less than 1 divided by 1 plus u square. From equation number 1 and 2, and this only we have to prove. Next we have example number 10. Using Lagrange mean value theorem, we have to determine a point on the curve y is equal to under root of x square minus x defined in the interval 2 to 4 where the tangent is parallel to the chord. देखिए tangent parallel to the chord क्या है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की, कि एक हमें कैसी टेंजेंट मिलती है जो पैरेलल बन जाती है हमारे पास गिवन कोड के. तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है f of x, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. जो फंक्शन है मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 2 to 4 and this is also derivable
इंटरवल 2 to 4। हम इसका डेरिवेबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x, दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो ये मेरे पास आ रहा है एफ डैश एक्स। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2 डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज इट इज डिफाइंड। सो एट एक्स इज इक्वल टू 2, डेरिवेबिलिटी में हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं 2 to 4, तो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है ही नहीं, फंक्शन इज डेरिवेबल। सो हमें thus you can write here thus both the conditions